اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 10 جیوگرافیہ میں۔ آج ہم ایک نئے چیپٹر کو اٹھانے جا رہے ہیں، اس پر ہم آج بات کریں گے جس کا نام ہے ایگریکلچر۔ جب ہم ایگریکلچر کی بات بولتے ہیں تو اٹ از دا آرٹ اینڈ سائنس آف کلٹیویٹنگ سوائل، گروئنگ کراپس اینڈ ریزنگ لائیو اسٹاک، یعنی یہ ایک ہنر ہے۔ ایگریکلچر کیا ہے؟ ایک ہنر بھی ہے، سائنس بھی ہے۔ کلٹیویٹنگ سوائل کی زمین کو ہم کیسے کلٹیویشن کریں، اس میں کیسے کراپس کو گرو کریں یا کیسے پلانٹس کو کلٹیویٹ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کیسے لائیو اسٹاک کو، جو ہمارے اینیملز ہیں ڈومیسٹک اینیملز، کیسے ہم ان کو ریئر کریں اپنے فائدے کے لیے یا دوسروں کے فائدے کے لیے۔ اس کو ہم ایگریکلچر بولتے ہیں۔ جب ہم انڈیا کی بات بولتے ہیں کہ چونکہ جو انڈیا ہے یہ جب ہم ایگریکلچرلی اس کی بات کرتے ہیں تو ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے، اور موسٹ آف دا پیپل دے آر ڈیپینڈنٹ آن دا ایگریکلچر۔ ان دا some 200 years ago, 90% of the population of India, it was totally dependent on the agriculture. That means our economy was agrarian economy. But with the passage of time, now, as of now, 2/3 of India's population, they are engaged in agricultural activities, directly or indirectly. ٹھیک ہے، چاہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہماری 2/3 پاپولیشن ہے وہ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز سے منسلک ہے۔ اور ساتھ ہی چونکہ جو ایگریکلچر ہے اٹ از دا پرائمری ایکٹیویٹی، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس سے جو ہمارا فوڈ جو ہوتا ہے پروڈیوس، یہی ایگریکلچرلسٹس پروڈیوس کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ہم کنزیوم بھی کرتے ہیں۔ ایک تو فوڈ گرینز بھی ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں یا ان کی پیداوار اس کی کاشت کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ایگریکلچر سے ہی ہماری جو انڈسٹریز ہے، ویریس انڈسٹریز، وہیں سے را میٹیریل بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، سپوز آپ کی جو کاٹن انڈسٹری ہے، تو جو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، تو وہاں سے اس کا جو را میٹیریل آتا ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ ایگریکلچر سے ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی اگر جوٹ انڈسٹری ہے تو وہ کہاں سے آئے گی؟ زمین سے ہی آئے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو پیپر کی انڈسٹری ہے تو وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ اسی سے زمین سے ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو ڈفرینٹ جو ہماری انڈسٹریز ہے دے آر ڈیپینڈنٹ آن دا ایگریکلچر۔ یا آپ کوئی جوس فیکٹری ہے، کوئی بھی جوس ہے تو وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو فروٹس کا کون اگاتا ہے؟ یہی کسان، یہی ایگریکلچر سے آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے کچھ ایگریکلچر پروڈکٹس ہے، جیسے ٹی ہے، کافی ہے، اسپائسز ہے، تو ان کو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی دوسرے ممالک میں ہم بیچتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے ٹائپس آف فارمنگ، یعنی جو فارمنگ کے کون کون سے طریقے ہیں۔ تو دیر آر ڈفرینٹ میتھڈس آف فارمنگ۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا پریمیٹیو سبسسٹینس فارمنگ ہے، یا اسی طرح سے کمرشل فارمنگ ہے، یا تو جو آج ہم کمرشل فارمنگ پڑھ رہے ہیں، یا اسی طرح سے انٹینسیو سبسسٹینس فارمنگ ہے، تو ان کو ہم ڈفرینٹ جو اس کے ٹائپس ہیں فارمنگ کے، تو ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایگریکلچر چونکہ یہ ایج اولڈ اکانومک ایکٹیویٹی ہے ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے پہلے ہی بتایا کہ گزرتے سالوں سے، یعنی ود دا پیسیج آف ٹائم، جو ہماری کلٹیویشن میتھڈس ہے وہ بھی ان میں بھی بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیوں یہ اس لیے بھی تبدیلی آئی کیونکہ ہماری جو فزیکل انوائرمنٹ یا ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ یا سوشو کلچرل پریکٹسز جو ہے یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ چینج ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو فارمنگ ہے کہیں پر سبسسٹینس یعنی زندہ رہنے کے لیے جو ہم صرف اپنے لیے اگاتے ہیں، جو کوئی بھی ایگریکلچر پروڈیوس ہے، تو اس کے بعد رواج آ گیا کمرشل فارمنگ کا۔ کمرشل ہو گیا جب آپ تجارتی پیمانے پر آپ کھیتی باڑی کرتے ہو۔ ایک ہو گیا سبسسٹینس فارمنگ جو آپ اپنے گھر کے لیے، ٹھیک ہے، سپوز آپ کا ویجیٹیبل گارڈن ہے، اس میں ہم صرف اپنے لیے اس پر کماتے ہیں، چاہے ہابی کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یا اپنے گھر
घर के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक बात कि एक तो हो गई सबसिस्टेंस फार्मिंग जिसमें हम सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, और दूसरा हो गया कमर्शियल फार्मिंग जो हम बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस करते हैं ताकि उससे खुद भी हम खाएं और दूसरे लोगों के लिए भी हम पैदावार निकालें। और उसमें सबसे पहली जो है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। तो ये जो प्रिमिटिव हो गई पुरानी, सबसिस्टेंस जिसमें सिर्फ आप अपने लिए पैदावार निकालते हैं, कोई भी प्रोड्यूस आप कोई भी क्रॉप आप कल्टीवेट करते हैं तो सिर्फ अपने लिए, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए, न कि बेचने के लिए, न कि कमर्शियल पर्पस के लिए। तो कुछ आज भी ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में आज भी राइज है। इसमें क्या होता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में, स्मॉल पैच ऑफ लैंड लिया आपने, ठीक है, जो आपके प्रिमिटिव पुराने टूल्स हैं लाइक हो, दाव एंड डिगिंग स्टिक, ठीक है, उसमें आप रिवायती ऊन जिसको हम कहेंगे खां बेल वगैरह, ठीक है, उससे आप ज़मीन को तैयार करते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर्स को ही एंगेज करते हैं या दूसरे आस पड़ोस हमसायों को उसमें लगा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं, आपका वेजिटेबल गार्डन है, 1 कनाल पर आधे कनाल पर वो फैला हुआ है, या आपने कहीं पर राजमा का बीज बोया, कहीं पर आपने मेज़ का बीज बोया, सिर्फ अपने लिए, न कि आप तिजारती पैमाने के लिए दूसरे, या सब्जी उगा रहे हैं आप तो सिर्फ अपने घर के लिए, आप कोई फ्रूट उगा रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए, ठीक है, कोई क्रॉप आप बो रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए, ठीक है। तो इसमें आप अपनी फैमिली मेम्बर्स का साथ लेते हैं या कम्युनिटी लेबर, यानी जो कभी आप जैसे हमारे दान हमारे यहाँ हम उगाते हैं, ठीक है, हम सबसे हमारे हमसाया हमको आते हैं मदद करने के लिए, हम फिर बाद में उनको जाते हैं उनकी मदद के लिए, जैसे हम बोलते हैं काद वो आज, ठीक है सर। तो इस तरह से तो जो हमारे रिवायती टूल्स हैं तो उनका इस्तेमाल करके इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और इस फार्मिंग जनरली ये मानसून्स पर डिपेंडेंट होते हैं, रेन्स पर, अगर रेनफॉल होती है तो आपके यहाँ प्रोड्यूस होता है, अगर नहीं तो ये सूख जाता है। और साथ ही साथ नेचुरल फर्टिलिटी, इसमें आप ज़्यादा वो फर्टिलाइज़र्स का आर्टिफिशियल ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का इसमें आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। और साथ ही साथ सूटेबिलिटी, आप क्या बोलते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस के मुताबिक जो क्रॉप्स वहाँ पर सूटेबल है वही, जैसे हमारे आजकल ग्रीन हाउस है तो उसमें आप जो अगर विंटर्स में भी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसमें उगा सकते हैं, वो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हो गया, ठीक है। लेकिन उसमें हम रिवायती तौर पर अगर हम कहेंगे तो हम विंटर्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को नहीं उगा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक इसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको हम बोलते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा होगा 9th में भी, इसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से, या स्वीडन एग्रीकल्चर के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, या इसी तरह से जूम कल्टीवेशन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो फार्मर एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करता है, वहां पर उसको बर्न करता है, ठीक है, उसमें आग लगा देता है, और जो उस एशेस होते हैं उससे वो फर्टिलिटी ग्रेन होती है, उसके बाद उस पर वो क्या करता है, उसके ऊपर वो काम करता है, इसके बाद वहाँ पर सीरियल्स और फूड क्रॉप्स को ग्रो करता है जिससे उसकी फैमिली सस्टेन करती है, तभी इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। सिर्फ फूड ग्रेन्स आप अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए उगा रहे हैं। इसमें ज़्यादा फर्टिलिटी, जो ही 2-3 साल तक उस पर फार्मिंग प्रैक्टिस की, उसके बाद जो ही वो ज़मीन अपनी फर्टिलिटी को लूज करती है तो उसके बाद वो शिफ्ट करता है, तभी इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, या इसको स्वीडन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। 2-4 साल तक आपने उस पर काम किया, ठीक है, उस पर फसल आपने बोया, ठीक है, लेकिन जो ही आपको लगता है कि इसकी फर्टिलिटी लूज हो गई है सॉइल की, तो आप शिफ्ट करते उसको ऐसे ही जोड़ देते हैं और दूसरी जगह दूसरा पैच ऑफ लैंड उसमें आप क्या करते हो, उसको क्लियर करते हैं, उस पर आग लगा देते हैं, और जो ऐश होते हैं उसके बाद उसमें जो उस ज़मीन को जोतते हैं तो उस पर फसल बोते हैं 2-4 साल तक। इसको हम शिफ्टिंग
कल्टीवेशन भी बोलते हैं, या स्वीडन एग्रीकल्चर भी, या दूसरे हम जूम कल्टीवेशन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और अब जो पहले आपने छोड़ दिया, जो आपने लीव किया जो वाला पैच ऑफ लैंड, तो 2-4 साल के बाद वो रिगेन फर्टिलिटी करता है। इस तरह से एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो लैंड होती है वो अपनी फर्टिलिटी को रिगेन करती है। लेकिन इस टाइप के एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लो होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप मॉडर्न टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसको मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ इलाकों में हिंदुस्तान में जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे आप अगर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट में, इसको हम क्या बोलते हैं, जूम कल्टीवेशन, ठीक है, जूमिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। इसी तरह से मणिपुर में इसको बोलते हैं पामलो। इसी तरह से बस्तर का डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, दीपा वहाँ पर बोलते हैं। और अंडमान और निकोबार में भी इसको क्या बोलते हैं, इसी नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या स्वीडन एग्रीकल्चर है, ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी प्रैक्टिस किया जाता था और किया जाता है, ठीक है। और इसको मुख्तलिफ नामों से वहाँ पर पुकारा जाता है। तो जो जूमिंग है इसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में, और इसी तरह से कोनुको वेनेजुला में, रोका ब्राज़ील में, मोसोली सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इंडोनेशिया में, और रे इन वियतनाम, ठीक है। जो ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, इसको हम ये मध्य प्रदेश में बिवार बोलते हैं, दहिया बोलते हैं, यह आपकी इस किताब पर दिया गया है, और मुख्तलिफ इलाकों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है। तो जो जूम कल्टीवेशन है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या स्वीडन एग्रीकल्चर, ये सारे इसके नाम हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो इसमें आपने कोई पैच ऑफ लैंड क्लियर किया, उस पर आग लगा दी, उस जो भी वहाँ पर घास फूस होगी या पेड़ पौधे होंगे, तो उसके बाद वो जो एश होते हैं उस पर आप बीज बोते हैं, 2-4 साल तक आप उस पर फसल बोते हैं। उसके बाद उसको जब लैंड फर्टिलिटी लूज करती है तो उसके बाद आप शिफ्ट करते हो, तभी इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी, या इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें सिर्फ फार्मिंग अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ही फार्मिंग की जाती है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, न कि कमर्शियल बुनियाद पर, यानी बेचने के लिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये एक तरह का तरीका हो गया और आज भी ये हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में राइज है। थैंक यू।